Hello students, I am back with my session number 3 of chapter number 7, Adaptations in Plants. Now kids, we completed our 2 sessions of this chapter, right? What we have done in session 1 and 2? We have done vocabulary words, meanings, habitat and adaptations, and terrestrial plants. In terrestrial plants, there are 5 types of terrestrial plants, right? We have done 3 types. Which are they? Number 1, plants in plains, right? Number 2 is plants in plains with less rainfall. Plants in plains with heavy rainfall, right? Today in this section I am going to explain you number 4 and number 5. Number 4 is plants in deserts, and number 5 plants in saline coastal areas. And last topic of this session must be aquatic plants. So kids, फटाफट से एक बार vocabulary words और meanings एक बार revise कर लेते हैं. We only going to pronunciate vocabulary words, okay? So चलो, let's start it. Number 1, habitat. Number 2, adaptations. Number 3, deciduous. Number 4, plains. Number 5, insectivores. Number 6, saprophytic. Number 7, underwater. Number 8, hollow. Number 9, desert. Number 10, spring. Number 11, sugarcane. Number 12, terrestrial. Number 13, saline. Number 14, nature. And number 15, coastal. Now meanings. Number 1, adaptation. The process of changing something to suit a new situation. Number 2, deciduous. Trees that shed leaves every year. Number 3, saprophytic. Plants that absorb food from dead plants and animals. Number 4, insectivorous plants. Plants that feed on insects are called insectivorous plants. Number 5, saprophytic plants. Plants that cannot make their own food and absorb food from dead plants and animals are saprophytic plants. Then after we have done habitat and adaptations in session number 2. Habitat. Plants grow almost all over the earth. Some plants grow well on land, water, other plants grow well in water. The place where a plant or a living thing lives in nature is called its habitat. मतलब कोई भी एक चीज जो होती है, plants, animals, कोई भी living thing, तो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में वो ग्रो होती है या तो फिर कोई रहता है, तो उसका वो क्या होगा, उसका वो पर्टिकुलर हैबिटेट हो जाएगा. The example of habitat is cactus plant in desert. Now adaptations. Plants growing in different habitats have certain features that are suited to their natural surroundings. Features that help plants, animals to adjust themselves in their natural surroundings or habitat is called adaptation. कोई भी चीज अपने आप को सराउंडिंग में उसमें सूट कर देती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी एडेप्टेशंस. क्लियर? नाउ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में नंबर 1 कौन सा था? प्लांट्स इन प्लेन्स. प्लांट्स इन प्लेन्स में क्या था कि जो फ्लैट सरफेस पे ग्रो होता है, उसकी एडेप्टेशंस क्या होती है, तो कि ट्रीज ग्रोज इन दीज एरियाज हैव मेनी ब्रांचेस, कि यहाँ पे ऐसे ट्रीज जो ग्रो होते हैं उसकी ब्रांचेस बहुत सारी होती है. मतलब कि जहाँ पे भी बहुत लेस रेनफॉल होता है वहाँ पे उसकी ब्रांचेस ट्रीज की बहुत ज्यादा होती है. Most trees found in these areas shed their leaves during autumn. मतलब कि every autumn season में वो अपने leaves को shade कर देती है. These trees are called deciduous trees. उस टाइप के trees को हम क्या बोलेंगे? deciduous trees. फिर है plants in plains with heavy rainfall, कि ऐसे plants जो होते हैं वो heavy rainfall पे कैसे grow होते हैं? कौन से plants जो होते हैं ऐसे प्लेन्स में भी जिसमें हैवी रेनफॉल होता है उसमें भी अच्छी तरह से ग्रो होते हैं. मैंने लास्ट सेशन में आपको इमेज दिखाई दी, राइट?
रबर ट्री, कोकोनट ट्री, टेक ट्री, राइट। तो उसमें कौन कौन से एडेप्टेशन होती है? तो कि ट्रीज ग्रोइंग इन दीज एरियाज हैव मैनी लीव्स एंड डू नॉट शेड इन द ऑटम। कि ऐसे टाइप्स के ट्रीज जो होते हैं उसके लीव्स शेड नहीं होते और थ्रू आउट द ट्रीज वो उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन लीव्स रहते हैं, उसमें लीव्स में कोई चेंजेस होता नहीं है। हमारे यहाँ कैसा होता है लेस रेनफॉल में कि जैसे जैसे लीव्स सूखे होते जाते हैं उसके कलर चेंज होते हैं, बट इसको तो पानी मिलता ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो उसके लीव्स कभी भी सूखे होते नहीं है, उसके कलर भी चेंज नहीं होता। थ्रू आउट द ईयर कौन सा कलर रहता है? ग्रीन कलर। फिर most trees found in these areas remain green throughout the year. These trees are called evergreen plants. उस टाइप के ट्रीज को हम क्या बोलेंगे? एवरग्रीन प्लांट्स। क्लियर? फिर लास्ट वन, प्लांट्स इन माउंटेन्स। जो माउंटेन्स में ग्रो होते हैं, वहाँ के माउंटेन्स में मैंने बोला था कि जैसे जैसे आप जाते हैं तो उसका एटमॉस्फेयर कैसा होता है? कूल होता है, राइट। तो कूल एटमॉस्फेयर में कौन कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं? फर, पाइन एंड सेडर ट्रीज, राइट। मैंने आपको लास्ट सेशन में फर ट्री की इमेज दिखी थी, राइट। वो बिल्कुल कॉर्न शेप का था, तो उसकी कौन कौन से एडप्टेशंस थी? तो कि मोस्ट ट्रीज इन द माउंटेन्स ग्रो टॉल एंड स्ट्रेट। वो ट्रीज जहाँ पे वो ग्रो होते हैं वो टॉल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। These trees are usually cone shaped. उसकी ट्रीज की शेप कैसी होती है? कॉर्न शेप की। This shape helps to slide snow off their branches. की स्लाइड से वो स्नो को લપસાવી દે, એટલે કે ત્યાં સ્નો કોઈ દિવસ જામી શકે નહીં. Most trees have small needle-like leaves. Mostly उस टाइप माउंटेन्स में जो ट्रीज ग्रो होते हैं उसमें क्या होता है कि उसके नीडल जैसे छोटे छोटे लीव्स होते हैं. Most trees do not have flowers. Instead, they bear cones and carry seeds inside. उस ट्रीज में फ्लावर्स नहीं होते, उसकी जगह पे क्या होते हैं? कॉन्स होते हैं जिसके अंदर सीड्स होते हैं. Clear, kids? Now let's start today's session. Point number 4, plants in desert. कि डेजर्ट में किस टाइप के प्लांट्स होते हैं और उसकी कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती है. डेजर्ट्स रिसीव वेरी लेस रेनफॉल. ये डेजर्ट में सबसे पहले तो क्या होता है कि बहुत ही लेस रेनफॉल, मतलब बहुत ही कम रेनफॉल होता है, राइट. डेजर्ट्स में आप कभी घूमने के लिए गए हो? नहीं गए हो तो जाना. क्लियर? अगर नहीं भी जाना है तो YouTube पे वीडियो सर्च करो डेजर्ट का, तो बहुत ही गर्म प्लेस होती है और वहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है. Plants found in the deserts can survive on very little water. मतलब वहाँ पे उस टाइप के प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं जिसको बहुत ही कम पानी की नीड रहती है. जो प्लांट को बहुत ज्यादा पानी की नीड होती है उस टाइप के प्लांट्स वहाँ पे सरवाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाते. तो वहाँ पे जिसको कम पानी में रह सकते उस टाइप के ही प्लांट्स वहाँ पे ग्रो हो सकते हैं. Cactus and date palms are examples of plants that grow here. कैक्टस तो हम सभी ने देखा है, राइट. मैंने फर्स्ट सेशन में आपको स्पिन वाला पिक्चर दिखाया था, राइट. तो वो दैट वाज वन टाइप ऑफ कैक्टस. वो एक टाइप का कैक्टस ही था. मतलब कैक्टस और डेट पाल्म्स करके ट्रीज है. हियर आई शेयर्ड अ पिक्चर ऑफ डेट पाल्म्स एंड कैक्टस, राइट. तो उस टाइप के ट्रीज कहाँ पे ग्रो होते हैं? डेजर्ट में ग्रो होते हैं. बिकॉज क्यों वहाँ पे डेजर्ट पे ग्रो होते हैं? क्योंकि इस टाइप के प्लांट्स को बहुत ही कम वाटर चाहिए होता है, तो इट इजीली कैन सर्वाइव ओवर देयर. क्लियर? ना उसको कौन कौन से टाइप्स की एडेप्टेशंस होती है, कौन कौन से टाइप्स की एडेप्टेशन उसमें होती है, वो एडेप्ट की होती है. उसमें द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट आर ग्रीन एंड हैव क्लोरोफिल. जो वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं ना उसकी जो स्टेम्स होते हैं ना वो प्योर ग्रीन कलर की होती है क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल का क्या काम होता है? इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, राइट. तो वहाँ पे ग्रीन कलर की स्टेम है, इसका मतलब कि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है. क्लोरोफिल क्या करता है? प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, राइट. These stems help in photosynthesis. कि वो जो ग्रीन कलर की स्टेम होती है उसको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में उसमें हेल्प करती है.
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या करती है? इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। अगर उसको थोड़ी सी अमाउंट में वाटर, एयर और सनलाइट मिल रहा है विथ क्लोरोस को, तो इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फूड फॉर कैक्टस। नाउ द स्टेम्स आर थिक एंड स्टोर वाटर। कैक्टस और डेथ पाम्स की जो स्टेम जो होती है ना, वो बहुत ही थिक होती है, मतलब झाड़ी हो। इट हेल्प्स टू स्टोर वाटर, मतलब कि वो वाटर को स्टोर करने में हेल्प करती है। बिकॉज डेजर्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि पानी ही नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक भी पानी नहीं होता। व्हाइट कैमल इज कॉल्ड द एनिमल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज वो अपने स्टमक में, हम बोलते हैं उसको, वो 15-20 डेज 1 मंथ तक का पानी अपने हम्प में स्टोर करके रखता है। तो वो क्या होता है कि उसको कभी 10 डेज 15 डेज तक पानी नहीं मिलता है, बट वो स्टोर्ड वाटर होता है ना, उसको वो यूज करते रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से कैक्टस जो है वो पानी को अपनी स्टेम में स्टोर करके रखता है, ताकि उसको पानी की बहुत नीड होती नहीं है। जब भी उसको फूड प्रिपेयर करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट, तो वो अपना पानी अपने में से यूज कर सकता है अगर उसके पास पानी नहीं है तो। क्लियर? Leaves are small and covered with a waxy coating. Wax coating. मतलब जो उसके लीव्स होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और उसकी कोटिंग कैसी होती है? वैक्स कोटिंग होती है। कैसी होती है? वैक्स टाइप की कोटिंग होती है, मतलब कि वो थोड़ा सा स्मूथ होता है। This protects the plant from losing water through leaves. मतलब उसका क्या वर्क होता है कि वो बहुत छोटे होते हैं और वैक्स कोटिंग होते हैं, तो कि इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है कि लीव्स को वाटर से दूर रखने। जो लीव्स जो होते हैं ना, लीव्स के थ्रू वो वाटर से इसमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है उसकी वैक्सीन कोटिंग। क्लियर? सम डेजर्ट plants have spines and thorns instead of leaves. Spines prevent loss of water. मतलब कि कोई डेजर्ट होते हैं ना, उसमें जो कैक्टस होते हैं ना, वो कैक्टस में भी डिफरेंट वेराइटीज होती है। कोई तो फुल ऑफ स्पिन्स होते हैं, किसी के कोई प्लांट्स ऐसे जो होते हैं जो लीव्स ही नहीं होते, सिर्फ स्पिन्स होते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्पिन्स क्या करता है कि उसको ज्यादा पानी की नीड होती है तो उसको कम कर देता है। इट प्रिवेंट्स, राइट, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। मतलब कि लॉस ऑफ वाटर, आपको पता है, आपने कभी नोटिस किया है कि लीव्स होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स कभी कभी होते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जब वो वाटर, कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कंटिन्यू करता है ना, तो उसको वाटर की नीड रहती है, वाटर बाहर भी थोड़ा निकलता है। तो ये क्या करता है, उसको इस प्रोसेस से थोड़ा से वाटर को बचा लेता है, इसलिए उस प्लांट्स को इजीली डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर? वंस अगेन आई एम रीडिंग plains in desert. Listen it carefully. Deserts receive very less rainfall. Plants found in the desert can survive on very little water. Cactus and date palms are examples of plants that grow here. Now adaptations. The stems of plants growing in deserts are green and have chlorophyll. These stems help in photosynthesis. The stems are thick and store water. Leaves are small and covered with a wax coating. This protects the plant from losing water through leaves. Some desert plants have spines and thorns instead of leaves. Spines prevent loss of water. Now, fifth one, plants in saline water. Saline coastal areas की ऐसे plants जो coastal areas में पाए जाते हैं। In saline coastal areas, the water has a high salt content. मैंने बोला था ना, saline मतलब कि ऐसा पानी जिसमें बहुत ही salt का content मिलता है, मतलब वो water is full of salty. मतलब वो वाटर जो होता है वो बहुत ही सॉल्टी होता है, खारा पानी, राइट? तो उसमें भी डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, उसमें भी ग्रो हो सकते हैं।
मैंग्रोव ट्रीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज दैट ग्रो हियर। मैंग्रोव ट्रीज होते हैं ना, वो बेस्ट एग्जाम्पल है जो सॉल्ट वाटर में इजीली ग्रो हो सकते हैं। सॉल्ट वाटर में कौन कौन से एडेप्टेशंस है? लेट्स लुक ऑन दिस। Trees growing in saline coastal areas overcome the problems of salt content in the soil with roots that grow above the soil. मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया था लास्ट चैप्टर में प्लांट्स के कि रूट्स का क्या काम है, तो कि वो सॉइल के अंदर का न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, तभी प्लांट जो होता है वो इजीली हेल्दी ग्रो होता है, राइट। तो ये सेलाइन वाटर है तो वो बट नेचुरल रूट्स क्या एब्जॉर्ब करेगा? Saline water ही absorb करेगा, right? These roots absorbs gases directly from the air, hence they are called breathing roots. मतलब कि पानी के अंदर रूट्स है तो उसको भी ब्रीदिंग करने के लिए जो स्पेस चाहिए होती है तो वो कैसे करेगा? वो डायरेक्टली एयर को अपने रूट्स में ले लेगा। तो उस टाइप के रूट्स को क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग रूट्स। क्या बोलेंगे किड्स? ब्रीदिंग रूट्स, क्योंकि उसके रूट्स तो अंडर वाटर होते हैं। अंडर वाटर कैसे वो ब्रीथ करते हैं? वो डायरेक्टली एयर से कांटेक्ट करके वो एयर को ब्रीथ कर लेते हैं, इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग रूट्स। क्या बोलेंगे किड्स? ब्रीदिंग रूट्स। नाउ these roots absorbs gases directly from the air, hence they are called breathing roots. These roots also have to take in water and other nutrients that are required for photosynthesis. Even ये जो रूट्स है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो कुछ भी जिसकी भी नीड होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स और व्हाटएवर चीज की, तो वो इजीली उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। क्लियर किड्स? Once again I am reading plains in saline coastal areas. Listen it carefully. In saline coastal areas, the water is a high salt content. Mangrove trees are the examples of trees that grow here. Adaptations. Trees growing in saline coastal areas overcome the problem of salt content in the soil with roots that grow above the soil. These roots absorb gases directly from the air. वो directly air में से ही great gases को ले लेते हैं. That's why this is there. That's why they are called breathing roots. These roots also help to take in water and other nutrients that are required for photosynthesis. Now last topic, aquatic plants. मतलब ऐसे plants जो water में रहते हैं. मैंने बोला था aquatic plants मतलब ऐसे plants जो पानी के अंदर under water grow होते हैं, right? Plants that grow in water are called aquatic plants. की ऐसे plants जो पानी के अंदर grow होते हैं, they are called aquatic plants. There are three kinds of aquatic plants. There are three kinds of aquatic plants. Again, there are three kinds of aquatic plants. Number one, floating. Number two, fixed. And number three, underwater plants. Again, repeat. Number one, floating. Number two, fixed. And number three, underwater plants. Now, number one, floating plants. Plants that float on water are called floating plants. की ऐसे plants जो पानी के ऊपर float मतलब तैरते हैं, उस टाइप के plants को हम क्या बोलेंगे? Floating plants. Duckweed and water hyacinth are the examples of floating plants. Okay, these are the examples of floating plants. Kids, आप लोगों ने कभी duckweed देखी? Here I shared an image of duckweed. आपको दिख रहा है वो पूरे के पूरे water में तैर रहा है, right? तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है जो पानी में तैरता है. तो किड्स उसकी एडेप्टेशंस क्या होंगी? रूट्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर नॉट फिक्स्ड. कि उसके रूट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो कहीं पे फिक्स नहीं होते होंगे, राइट? बाकी क्या होता है, प्लांट्स के रूट्स सॉइल से कनेक्टेड फिक्स रहते हैं, तो वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, राइट? तो यहाँ पे फ्लोटिंग है, तैर रहा है, तो वहां पे तो कोई रूट्स फिक्स होंगे ही नहीं. बट हैंग इन वाटर मतलब कि वो लटकते हैं, वाटर में नीचे हैंग होते हैं. क्या होते हैं? हैंग होते हैं, मतलब उसके रूट्स जो होते हैं वो नीचे लटक रहे होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
These plants are light and small with spongy stems. Kids, but नेचुरली कि वो फ्लोट हो रहे, मतलब उसका वेट कैसा होगा? बहुत ही लाइट वेट होगा। कैसा होगा? लाइट वेट होगा। उसकी स्टेम जो होगी ना वो बहुत ही स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी मतलब सॉफ्ट, एकदम पोचू पोचू हो, राइट? तो उसकी स्टेम बहुत ही स्पॉन्जी होती है और वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, इसलिए वो इजीली फ्लोटिंग करते हैं। तो ये उसकी एडेप्टेशन हुई ना। This helps them to float on water. इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो इजीली पानी के ऊपर फ्लोट होते रहते हैं। बाकी कोई हैवी प्लांट होगा वो तो इजीली फ्लो होगा नहीं, वो तो अंदर चला जाएगा। Clear kids? I hope so you understand. Kids, again I am reading about aquatic plants. Listen it carefully. Plants that grow in water are called aquatic plants. There are 3 kinds of aquatic plants. Number 1, floating. Number 2, fixed. Number 3, underwater. हम लोगों ने कौन सा किया? Floating. Plants that float on water are called floating plants. Duckweed and water lizard are the examples of floating plants. Adaptation. Roots of floating plants are not fixed but hang in water. These plants are light and small with spongy stems. This helps them to float on water. Kids, here we completed our today's session, right? In next session, I am going to explain you fixed plants and underwater plants. उसके बाद क्या कराऊंगी? Special adaptations in plants. तो हम नेक्स्ट 4th सेशन में ये सब कुछ करेंगे, राइट? तो किड्स, आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ विथ यू, राइट, ऑफ ब्लैंक्स, आई मीन ऑफ USD related. Some of our blanks, some of our one word answers, right? Try to do it by your own self. अगर आपने ये सेशन अच्छी तरह से समझा है तो आपको इजीली अच्छी तरह से आंसर आ जाएंगे. So do it by your own self. So kids, till next session, bye.